आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित अधिगम पुनः के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी एसएन टीवी सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर भी करो। ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂब ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೆ सब्सक्राइब ಮಾಡಿ। तो चलिए शुरू करते हैं। 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲ 10 ಚಟುವಟಿಕೆ 1, 2 ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ 10.1 ರಿಂದ 10.5 ರವರೆಗೆ। 8वीं कक्षा हिंदी अधिगम पुनः प्राप्ति सीखने के प्रतिफल 10 गतिविधि 1, 2 और मूल्यांकन गतिविधियां अभ्यास 10.1 से 10.5 तक। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सीखने के प्रतिफल 10 हिंदी अंकों यानी गिनती के बारे में जानेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಲಿಕಾ ಫಲ 10ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿಂತಿ ಅಂದರೆ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು 1, 2, 3 ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ 1, 2, 3, 4 ಏನಿದೆ ಗಿಂತಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ। तो चलिए देखते हैं। गतिविधि 1 ಗಿಂತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ 1 गिनती एणिकेगळु अभ्यास 10.1 गिनती पूर्ण कीजिए कलिका हाಳೆ 10.1 ಇಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು। ಒಂದಷ್ಟು ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಂತಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए देखते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। तो बच्चों आप इस प्रकार गिनती पूर्ण कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑलरेडी किताब में 1 से 100 तक दिए गए हैं, लेकिन एक के बाद 10 दिए हैं। बाकी रिक्त स्थान में सही अंक यानी गिनतियों को आप लिखकर पूर्ण करना है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ರಿಂದ 100 ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನೀವಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला अभ्यास देखते हैं। अगला अभ्यास है अभ्यास 10.2 इनके आगे यह संख्या आती है। बच्चों अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे कुछ संख्याओं को दिए गए हैं, उन संख्याओं के आगे कौन सा संख्या आता है उसे लिखना है। जो संख्या आती है उसे लिखना है। तो उदाहरण के लिए पहला संख्या है 23। 23 के बाद इसके आगे की संख्या ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 23 ಅಂದರೆ 23। ಆ 23 ಅದು 23 ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 23 के बाद यह संख्या आती है 24, 24। तो वैसे ही आप लिख सकते हैं कि 25, 25 के बाद 26 और 33, 33 के बाद 34। तो वैसे ही ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। 45, 45 के बाद 46 और वैसे ही 39, 39 के बाद 40 और
21 21 के बाद 22 21 का मतलब 21 21 ಆದ ನಂತರ 27 ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए देखते हैं. 32 32 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32 32 के बाद आती है 33 33 37 ಆದ ನಂತರ 33. तो वैसे ही 40 40 के बाद 41 वैसे ही 28 ಅಂದರೆ 28 28 के बाद 29 ಅಂದರೆ 29. वैसे ही 47 47 के बाद 47 संख्या दिए गए हैं 47 के बाद 48 आता है 47 ನಂತರ 48 ಬರುತ್ತೆ. वैसे ही 34 यहाँ पे 33 दिए गए हैं 33 के बाद 34. वैसे ही 29 29 के बाद 30. तो आप क्या कर सकते इस प्रकार लिख सकते हैं. तो चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं. गतिविधि 2 अंक से अक्षर जाने शब्दों में. बच्चों यहाँ पे कुछ अपूर्ण अंकों को दिए गए हैं. उन अंकों को अक्षर में लिखना है इन शब्दों में लिखना है. तो अभ्यास है ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗತಿವಿಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಟುವಟಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ. अभ्यास 10.3 गिनती लिखिए और पढ़िए. ಮಕ್ಕಳ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ 10.3ರಲ್ಲಿ ಗಿನತಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए देखते हैं. अंक है 21 दिए गए हैं 21 अक्षर में भी दिए गए हैं 21. तो वैसे ही 25 आप लिख सकते हैं रिक्त स्थान में 25 और अक्षर में भी शब्द में भी लिखना है 25 को लिखना है. उसके बाद 33 हिंदी अंकों में लिखना है 33 को अंग्रेजी में दिए गए हैं. वैसे ही 34 को भी लिखना है. वैसे ही 36 हिंदी अंक भी लिखना है और अक्षर में भी इसे लिखना है 36 को. वैसे ही 39 हिंदी वर्ण संख्या दिए गए हैं शब्द और अंग्रेजी में लिखना है 39. वैसे ही 42 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो वैसे ही 23 को दिए गए हैं उसके बाद की संख्या है 28 28 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. उसके बाद 30 के बाद 32 के बाद 35 के बाद 38 के बाद है 40 और 40 के बाद 41. तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं इस अपूर्ण तालिका को पूर्ण कर सकते हैं. तो अगला पृष्ठ है ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. तो आप लिख सकते हैं 47 वैसे ही 50 उसके बाद 43 44 और 46 48 49 का मतलब 49. तो बच्चों आप इस प्रकार इसे पूर्ण कर सकते हैं. बच्चों चलिए आगे देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. अभ्यास 10.4 अक्षरों में लिखिए इन शब्दों में.
दिए गए अक्षरों को देखकर अक्षर और संख्या दोनों में लिखा है। अब देखकर गौर से देखकर लिख सकते हैं। पहला चित्र में दिए है 11, 7 और 35। इसे अक्षर और संख्या में लिख सकते हैं। तो बच्चों चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। अभ्यास 10.5 अंकों में लिखिए। ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ 10.5 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। पहला शब्द है 22। तो 22 को उदाहरण के लिए दिए गए हैं। उसके बाद है 24। 24 को इस प्रकार आप लिख सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। तो उसके बाद 36। 36 को इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद है 45। 45 के बाद 21 और 21 के बाद 50। 50 के बाद 40। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अंकों में लिखकर इसे पूर्ण कर सकते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು अंक ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ पूर्णಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। बच्चों चलिए अगला क्रियाकलाप की ओर या अभ्यास की ओर चलते हैं। मूल्यांकन गतिविधियां ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು। ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ। पहले की संख्या लिखिए। बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, दिए गए संख्याओं के पहले आने वाली संख्या लिखना है। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो पहला संख्या है 27। 27 संख्या से पहले की संख्या है 26। ಅಂದರೆ 27 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 27 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 26 हिंदी में क्या कहते हैं, 26 इसे 26 कहते हैं। तो वैसे ही अगला संख्या है 33। 33 संख्या के पहले की संख्या है 32। वैसे ही 21 संख्या दिए गए हैं, 21 से पहले की संख्या है 20। वैसे ही संख्या दी गई 41। 41 से पहले की संख्या है 40। वैसे ही 37 संख्या दिए गए, 37 से पहले की संख्या है 36। 36। तो अगला संख्या है 52 संख्या दिए गए हैं, 52 से पहले की संख्या है 51। 51 ಅಂದ್ರೆ 51। तो वैसे ही 11 संख्या दिए गए हैं, 11 से पहले आने वाली संख्या है 10। तो वैसे ही 2 संख्या 2 दिए गए हैं, 2 से पहले 1। 24 दिए गए हैं, 24 से पहले 23। 16 संख्या दिए गए हैं, 16 से पहले की संख्या है 15। वैसे ही 44 संख्या दिए गए हैं, 44 से पहले की संख्या है 43। वैसे ही 9 संख्या 9 दिए गए, 9 से पहले आने वाली संख्या है 8 इंटू। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन गतिविधि में पहले की संख्या लिखकर इसे दिए गए संख्याओं से पहले आने वाली संख्याओं लिख सकते हैं, लिखकर इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। बाद की संख्या लिखिए। दिए गए जो संख्या है उस संख्या के बाद में आने वाली संख्या को लिखना है आपको। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो उदाहरण के लिए पहला संख्या है 46। 46 46 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो आपको क्या क्या लिखना है, बाद की संख्या
सैंतालीस को लिखना है। वैसे ही संख्या 35 दिए गए हैं, 35 के बाद 36। वैसे ही 37 संख्या दिए गए हैं, 38 को लिखना। 37 नहीं है यहाँ संख्या, हाँ 37 दिए गए लेकिन किताब में 37 नहीं है। 67 संख्या दिया है, उसके बाद 68 को लिखना है। तो उसके बाद है 25 संख्या, 25 दिए गए हैं, 25 के बाद की संख्या है 26। तो उसके बाद हम देख सकते हैं 69 संख्या दिए गए हैं, 69 के बाद की संख्या है 70 और 61 संख्या दिए गए हैं, 61 की बाद की संख्या है 62। इसके बाद 55 संख्या दिए गए हैं, 55 के बाद 56 संख्या लिख सकते हैं। तो उसके बाद 11 संख्या दिए गए हैं, 11 के बाद 12। वैसे ही 41 संख्या दिए गए हैं, 41 के बाद 42 आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इस मूल्यांकन गतिविधि को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ सीखने के प्रतिफल 10 समाप्त होती हैं। आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानवाणी SNTV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करो। आप सभी को धन्यवाद, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।